Hello everyone. Today we are going to start a new poem of 11th class Personal Helicon for Michael Longley. Poem under analysis was written by the Irish poet Seamus Heaney, who was born on 13th of April 1939 and died on 30th of August 2013 in Dublin, Ireland. Personal Helicon for Michael Longley was published in Heaney's first major collection, Death of a Naturalist, in 1966. Title of the poem Personal Helicon for Michael Longley is a tribute of poet to his contemporary poet and friend Michael Longley. The title allude mountain helicon. Allude means which give brief mention about person, place or mythology. Helicon is a mountain range from where springs of goddess of poetry originate. This spring was thought to be the home or abode of 9 muses who blessed the poet and artist to produce great work of art. Being a supreme creative art needs divine support. But being a creative artist, Seamus Heaney does not look to any helicon to compose his verses. His source of inspiration does not lie outside his own self. Rather, it lies within his soul, and his soul is his helicon. From the deep well of his own soul, he pulls out buckets and reveals reality. The fountainhead of his poetic thought is his own soul. Therefore, the title Personal Helicon means personal source of inspiration. The poem under reference is consists of 5 quatrain, pentameter, 10 syllable per line, A B A B C D C D E F E F G H G H I G I G. Half rhyme scheme is used in the poem. From the outset of the poem, the speaker sets up a subtle juxtaposition between world of adult and world of children. From the beginning of the poem, we can make out this difference. Now coming to the reading of the poem. As a child, they could not keep me from wells and old pumps with buckets and windlasses. I loved the dark drop, the trapped sky, the smells of waterweed, fungus and dank moss. From this stanza, मैं आपको जो है अभी लाइन टू लाइन पोएम का मीनिंग और उसमें यूज होने वाले पोएटिक डिवाइस, वर्ड मीनिंग सब साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे पोइट जो है कुछ सिंबल का यूज कर रहा है, जैसे कि वेल, पम्प्स, बकेट्स, विंडलेसेस, डार्क ड्रॉप, स्मेल्स, वाटरबीट, फंगस, टैंक मॉस, ये सारे सिंबल हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड आया है कीप मी. Keep me is a phrase which means stop me. Windlasses used to pull water. It's a type of pulley. Dark drop. Dark drop means depth of well. Trapped sky. Trapped sky means a reflection of sky in well. Fungus, waterweed are the plants grown in the well. Dank moss. Moss is a green vegetation which grows in well. Dank means damp, wet. तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजे में पोइट कहता है, बेसिकली पोइट जो है अपने बचपन को याद कर रहा है, वो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक है। वह कह रहा है कि वह कुओं और ओल्ड पंप से बहुत ज़्यादा फैसिनेट था। बड़े लोग उसे कुएं या पंप्स के पास नहीं जाने देते थे, पर वह फिर भी वहाँ पहुँच जाता था। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि बड़ों के लिए कोई चीज़ें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन बच्चों में वही चीज़ें जो है वो बहुत क्वालिटीज़ की होती हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती हैं, और बच्चे जो है उनमें नेचुरल ब्यूटी जो है वो ढूंढ ही लेते हैं। इस तरह पोइट जो है वो क्लियर डिस्टिंक्शन बना रहा है इन दी वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड एंड द ओल्डर वंस. वर्ड दे रेफर्स टू द एल्डर वंस ऑफ द फैमिली. तो यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहा है कि नेटिव प्लेस जहाँ पे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ पे वो बड़ा हुआ है, वहाँ की बात कर रहे हैं आयरलैंड की, कि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे बहुत सारे कुएं थे, और जिस कुएं की बात वो इस स्टैंजे में कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कुआं बहुत गहरा था. डार्क ड्रॉप इट शोज द डेप्थ ऑफ द वेल. कुआं बहुत गहरा था. कंसोनेंट वर्ड जो है रिपीट हुआ है डी 2 बार, इसलिए ये एलिट्रेशन है. उसी तरीके से अगर हम पीछे चलें तो वेल मैंने आपको बताया सिंबल है, और वेल जो है वो मेटाफोर भी है. यहाँ पे बहुत सारे सिंबल का यूज हुआ है, जैसे पम्प्स, बकेट्स, विंडलेसेस, और ये सारी विजुअल इमेजरी भी हैं. नेक्स्ट वो कह रहा है कि कुआं इतना गहरा है कि ऐसा लगता है उसके अंदर जो है वो आकाश जो है वो
ट्रैप्ड है, वहाँ से आकाश जो है वो निकल नहीं सकता। बेसिकली वो स्काई की रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। वहाँ पे वो कह रहा है कि स्मेल्स ऑफ वाटर वीट, जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं वेल में, उनकी स्मेल उसको आ रही है जब वो वेल के अंदर देखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इमेजरी है olfactory imagery, the smell. One in a brickyard with a rotted board top, I savored the rich crash when a bucket plummeted down at the end of a rope, so deep you saw no reflection in it. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं एक और कुआं है जो कि ब्रिक यार्ड से बने हुए आंगन में है, और उसका टॉप जो है वो बिल्कुल रॉटन कंडीशन में है, वो बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस तरह से पोइट जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुआं उनके यार्ड में है उसके आसपास ब्रिक्स लगी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा गहरा है, क्योंकि जब उसके अंदर बकेट जो है वो फेंकी जाती है पानी लाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, रिच क्रैश when a bucket plummeted down. Plummeted means suddenly came down. Rich crash, sound of thrashing of the bucket in the water. Savored, I enjoyed. तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि हमारे ब्रिक यार्ड में एक और कुआं है जिसमें जब बकेट को डाला जाता है तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है जैसे ही बकेट डाउन जाती है वेल में, और एक सिरा ही रोप का रह जाता है, बाकी सारी रोप नीचे चली जाती है, जिससे ये पता चल रहा है कि कुआं बहुत डीप है। सो डीप यू सा नो रिफ्लेक्शन इन इट, और इतना गहरा है कि उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही। यहाँ पे पोइट ने काफ़ी इमेजेस का इस्तेमाल किया है, ब्रिक यार्ड, रॉटेड बोट टॉप, रिच क्रैश, बकेट, प्लूमेटेड, रोप, ये सारे जो हैं वो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। ब्रिक यार्ड, बकेट, प्लूमेटेड, रोप, सो, नो, ये जो हैं ये सारे एजोनेंस की एग्जाम्पल हैं। एजोनेंस होता है रेपिटिशन ऑफ वोवल साउंड। इसी तरीके से फंगस, डैंक मॉस, बकेट, पम्प्स, these are also the example of assonance here. Auditory imagery भी है। Rich crash is an example of onomatopoeia. So no is example of alliteration. Next, a shallow one under a dry stone ditch, fructified like an aquarium when you dragged out long roots from the soft mulch. शैलो वेल है जो कि ड्राई स्टोन डिच के नीचे बना हुआ है, वो ज़्यादा गहरा नहीं है और उसमें बहुत सारी वेजिटेशन भी हो गई है, और उसमें जो है वो एक्वेटिक एनिमल भी हैं, और वो जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए उसके अंदर से अगर हम प्लांट्स को पकड़ के निकालने की कोशिश करें तो उसके लॉन्ग रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। और वहाँ पे सॉफ्ट मल्च बहुत है। Fructified like an aquarium when you dragged out long roots from the soft mulch, a white face hovered over the bottom. In this stanza, तो यहाँ जो रूट्स की बात की है, लॉन्ग रूट्स, दीज आर द सिंबल ऑफ फैमिली एंड ट्रेडिशंस। और लिटरल मीनिंग में पोइट ये कहते हैं कि एज अ चाइल्ड when he pulled out plant from the mulch of ditch, they are soft to touch. तो soft to touch का मतलब है कि there is a use of tactile imagery in it. जैसे ही वो सॉफ्ट मल्च निकालता है तो उसको अपना चेहरा दिखाई देता है। शैलो जो है मतलब है इसका लेस डीप, फ्रक्टिफाइड बोर फ्रूट, एक्वेरियम, वाटर टैंक विद लाइव फिशेस, hovered over means suspended over or to move to and fro, dragged, pulled, mulch is dead decaying leaves on the surface of water. तो इस स्टेंजे में सेकेंड लाइन में एलिट्रेशन और सिमिली का यूज हुआ है। लाइक इज सिमिली, एनी एक्वेरियम एलिट्रेशन, रूट सिंबल ऑफ फैमिली, सॉफ्ट मल्च टैक्टाइल इमेजरी, ए वाइट फेस
is a visual imagery. Howard bottom is assonance here. Other had echo, gave back your own call with a clean new music in it, and one was scarcesome for there out of ferns and tall foxglove, a rat slapped across my reflection. फोर्थ स्टैंजे में पोइट जो है यहाँ पे इको की बात कर रहे हैं. इको और हेलिकन, नार्सिस, यहाँ पे ये जो तीन वर्ड यूज हुए हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन. एल्यूजन मीन्स ब्रीफ मेंशन अबाउट पर्सन, प्लेस और मिथोलॉजी. तो फोर्थ स्टैंजे में पोइट जो है वो कह रहे हैं कि कुछ और कुएं भी हैं जहाँ पे पोइट जो है वो जाता है, और अगर वहाँ पे वो आवाज़ देता है तो आवाज़ उसकी वापस सुनाई देती है, इको होती है. और जैसे ही वो वहाँ पे इको सुनता है, क्लीन न्यू म्यूज़िक इन इट, तो क्लीन न्यू म्यूज़िक कुआं उसको दे रहा है. बैक योर ओन कॉल, गेव बैक योर ओन कॉल. तो यहाँ पे गिव बैक योर वर्ड है, ये रेफरेंस किया हुआ है कि कुएं के द्वारा जो है वो आपको आवाज़ वापस दी जाती है, और वो पहले से ज़्यादा क्लीन और नए म्यूज़िक से भरी हुई होती है. एक तरह से वो करेक्टरिस्टिक दे रहे हैं ह्यूमन का वेल को, इसलिए गिव बैक से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है. क्लीन न्यू म्यूज़िक, न्यू म्यूज़िक and clean, use of assonance. Fern and tall foxglove, rat slapped across my reflection is a visual imagery. यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जैसे ही वो देखता है और साउंड उसको सुनाई देती है, प्रतिध्वनि आती है कुएं से उसको अपनी ही आवाज़ की, वो थोड़ा सा डरावना भी लगता है उसको. वहाँ पे उसको थोड़ा सा ये फील होता है कि ये गहरा कुआं है और इसमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, सिर्फ वेजिटेशन है, फर्न है और टाल फॉक्स ग्लव्स के फ्लावर हैं वहाँ पे. वो सब ये देख रहा था, वो अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से ये सब जांचने परखने की कोशिश करता है कि अचानक उसके जो है कंसंट्रेशन टूटती है और एक रैट जो है वहाँ से निकलता है. तो यहाँ पे पोइट जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समथिंग इज डिस्टर्बिंग इन हिम, उसको कुछ परेशान कर रहा है. इन द फिनोमिना ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन द पोइट इज डिस्टर्ब्ड बाय द रैट हु स्लैप्ड अक्रॉस हिज रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे पोइट जो है वो काफ़ी पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज now to pry into roots, to finger slime, to stare big-eyed narcissus into some spring is beneath all adult dignity. I rhyme to see myself, to see the darkness echoing. Now poet is talking about the present time. आज मैं तो बड़ा हो गया हूँ, I am mature. अभी जो है मुझे रूट्स के साथ खेलना, जो स्लाइम है उसको टच करना, या फिर स्प्रिंग में देखना नार्सिस की तरह अब पसंद नहीं है. यहाँ पे नार्सिसस का जो वर्ड यूज़ किया है एल्यूजन के साथ साथ एक तरह से ये मेटाफोर भी है. वो अपने लिए नार्सिस का यूज़ कर रहा है. मैं पानी में जब झांकता था नार्सिस की तरह झांकता था, जैसे वो पानी में अपने इमेज को देखता था और अपने ही अंदर जो है वो गुम रहता था, अपने आप से ही प्यार करता था. मैं भी इस तरह से दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ अपने ही दुनिया में खोया रहता था. पोइट जो है अपने आप को इग्नोरेंट कह रहा है फ्रॉम द लाइफ अराउंड हिम, जैसे कि नार्सिस था. तो ये मेटाफर भी यूज हुआ है यहाँ पे. एलिट्रेशन का यूज हुआ है सम स्प्रिंग, बिग आई, इनटू स्प्रिंग, डिग्निटी, राइम, माई सेल्फ, ये सारे एजोनेंस के एग्जाम्पल्स हैं. सी, सेट, ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है. पोइट जो है यहाँ पे बिगनिंग से लास्ट तक यहाँ पे चेंज ओवर हो रहा है. इन द लास्ट स्टैंजा ही गेन अडल्टहुड, अब वो बड़ा हो गया है. अब उसको ये सारे जो काम है कुएं में देखना या स्लाइम को टच करना, मल्च को
हाथ लगाना, ये सारी चीजें उसको बिलो डिग्निटी लगती हैं। तो वो कहता है कि अभी ये सब काम करना, इनको इन चीजों के साथ खेलना जो है वो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। एज ए चाइल्ड ही इज मोर क्लोज टूवर्ड्स नेचर देन द मैच्योर मैन. When Heaney grew up, he could see only darkness in the well instead of his own reflection. It is his journey from the young age poetry to the mature age poetry. Now, he stopped writing poetry which he wrote earlier. His poetic perception has become more mature in his years of adulthood. He no longer look into wells but write poetry that makes the darkness echo and resound. Okay, thank you.